So, good morning, everyone, and thanks for joining us. It's a bright Sunday morning, and a lot of information for you to be able to help your child select. And if there are students, they are very welcome to understand what they could do about humanities, then management, or defense and civil services. So, a lot of information, but I'm sure it will be really, really useful for everyone. So, because I see some new people joining, I'll quickly take you through the two organizations who have organized these series of free career counseling sessions. We are also live on Facebook, and our videos are also uploaded on YouTube. So, I would request you that if you really like them, please go to YouTube and Facebook and like them. You could register with us, and so that you get information for our next sessions as well. And we have lot many sessions planned, and in case you want a specific session, you could help us with the topics, and if it is possible, we will certainly arrange if it is in benefit of students and parents in any which way. So very well happy to help you guys. So let me get started. As I mentioned, this session is about career counseling choices, and we just want to help the students to design specially meant for students who are in 8th, ninth, or 10th grade. It could be useful even for 11th and 12th graders, but those who are in 8th and ninth and 10th, they get better opportunity to be able to take informed decisions. There are two organizations associated. One is Scholar City Adventures, which is based out of Kota, and second is Sushma Science Center, which is based in Pune. About Sushma Science Center, we are privately held, incorporated in June 2011. Our alumni are in best institutes of India, IITs, ISERs, and NITs. Many of them are doing medical as well. And there are students who are NTSE KVPY scholars. They have also qualified in various Olympiads, working at different levels in tech companies like Microsoft and other companies, and also working for MNCs and very reputed banks as well. Our motto is that students should become future thinkers and innovators. We focus on small classrooms, strong conceptual understanding. We try to have a mixed blend of technology and human touch. We focus on futuristic skills and try to connect with each and every student, and we do have AI based test platform which will help us to make the students very strong in their own way by doing a lot of practice. Here advantage of AI based platform is that they don't really have to compete with a particular or set of human beings. Data is available, so they can see that there is somebody who has solved this question faster, or so many people got it right or wrong. So they have comparative understanding, but still they are not getting compared with a particular person, which is very advantageous. We have seen that if there are immediate friends whom you are getting compared with, it really puts the moral down for a lot of students. So everyone is not driven by competition. Some people like to do their best, and which is also great idea. We This time we are going to offer courses for 11th and 12th, which will have a blend of quota feature as well, and which will make us more and more strength. We can say that it will be really good for students to get an idea or directly learn from teachers who have been teaching in quota and have been churning out leaders in terms of technology and medicine. So that is another thing that we are going to have this time. Moving on to about Scholar City, a very newly founded institute, but it is being backed by Manoj, who is also present in our session. But and so the Scholar City is, though it may be just infant in this area, but
lot of knowledge and experiences behind the organization. Manoj has close to 20 years of experience, which speaks on his career information, counseling, career care, mentoring, and career content and coaching related stuff. They are also collaborating with lot of academic institutions like colleges, schools, coaching centers, and universities to offer similar guidelines, because we have seen that even after doing your graduation, people are still not clear what career is. They just try to get some job. Some companies come to their organization, pick up the job and do it, but that's not what career really is. You have to design it and go ahead with that. The tagline of Scholar City Kota is, it conveys the ethos of brand and its focus area, that is education and knowledge, which is boundaryless and unlimited like the universe. So that's the focus of the organization. Uh, about me, I'm Sushma Samarth, an alumni of IIT Mumbai and Indian School of Business, Hyderabad. I have worked in various levels, especially in banking, for close to 16 years. And after that, I turned into entrepreneur, and I'm also a high performance coach, educator, motivator, and thinker. I'm committed to make the new generation future ready, and I'm also a career guidance specialist. About Manoj, lot of feathers in his cap, but I'll just give some brief. He's a founder and mentor of Scholar City Kota, an edu professional turned entrepreneur. He has done MBA, PGP Max from Indian School of Business, Hyderabad. He has done a lot of programs with Wharton Business School, USA, Kellogg's Business School, and IE Business School, Madrid, Spain. He's also MBA from RTU Kota. He has done some courses from BITS Pilani, so he's an alumnus of very, very reputed institutes all across the world, we can say. And prior to establishing Scholar City, he was working at very senior and strategic level in Resonance EduVenture in Kota. So he has complete understanding of how we have to bring up the students and get best out of them. These are our some success stories. I'll quickly move on. The pages are too small to write everything about us. This is our 10th result and 12th result. Let me hand it over to Manoj for his session. Manoj, so what do you want me to cover for the first session? Start with arts and humanities Arts first. and humanities. Okay, Then sure. you can take over for management part, and then I'll come back with government Perfect. civil and defense services. Yes, perfect. We'll do that. Hi, So good welcome, morning. Manoj, and over to you. Yeah, good morning, everyone. Thank you, Sushma, for introducing me and my organization. So I welcome all the students and parents in this webinar. ये जो आज का वेबिनार है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कैरियर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. उसके बाद जो है सुषमा विल कम बैक विद focus on management, career in management stream, and then I'll take over again with information on career in civil and defense services. So I'll start my first part of today's webinar with career in arts and humanities. We can move, as I have already been introduced, so I'll not take your time in introducing me again. Next. Yeah. So arts and humanities wala part usme will cover about stream, the kind of aptitude required to get successful or to become successful in arts and stream category. The higher studies options, about colleges, entrance examinations, few we'll talk about few entrance examinations as well. Level of competition, sometimes we feel that there is no competition in arts and humanities, but it is there. Placement packages, cost of studies, ranking and rating, career after undergraduation, career progression, prominent professionals, how to prepare, and few FAQs that will finally take up after all the 3 sessions are over.
So it's a bit lengthy presentation. A lot of slides are there, but I'll not spend much time on each slide. Some of the slides I'll skip, but just for the sake of building the entire story or connecting the things, I have put the content here. But I'll briefly touch the content from each slide. So let's begin with Sushma. Yeah. So arts and humanities, सब लोग जानते हैं या जिसमें जो लोग it's a very common, these are very common words. Arts is very common. Humanities normally उतना हम लोग नहीं सुनते हैं जानते हैं, but both are interconnected, interchangeable sometimes. और हम लोग इसको ज्यादातर एक दूसरे के रिप्लेसमेंट के वैसे दोनों लगभग काफी एक जैसे मिलते हैं. थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस थोड़ा सा हम देख सकते हैं. तो दोनों जो कैरियर है, वन ऑफ द जो टू ऑफ द ओल्डेस्ट फील्ड्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल टू मैन, काफी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं. मतलब और थोड़ा सा अगर इनमें डिफरेंस देखें तो आर्ट इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ विजुअल, ऑडिटरी और परफॉर्मिंग आर्टिफैक्ट्स. इट्स मोर टुवर्ड्स आर्ट्स, क्रिएटिविटी पार्ट. And the humanities parts are academic disciplines that study aspect of human society and culture. So the humanities include the study of ancient and modern languages, literature, philosophy, history, archaeology, anthropology, human geography, law, politics, and religion. While in arts, we study about conceptual ideas, technical skills, creators' imagination, intended to be appreciated primarily for their beauty or emotional power. So थोड़ा फर्क है दोनों में, पर दोनों कैरियर जो है नॉर्मली साथ साथ जो है यूज होते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज. सो आई हैव ट्राइड टू क्लेरिफाई बोथ द थिंग्स, व्हाट एग्जैक्टली आर्ट्स का मीनिंग होता है, थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज का एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है. बट बहुत नॉर्मल लाइफ में हम लोग दोनों को साथ साथ ही यूज करते हैं. आगे चले. सो आर्ट जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट मींस स्किल, मेथड और टेक्निक्स, और ह्यूमैनिटीज है डिराइव्ड फ्रॉम Renaissance Latin expression जो स्टडी ऑफ मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. दुनिया में जो पहला कॉलेज था 1682 में पेरिस में फाइन आर्ट स्कूल बना था इसका, और इंडिया में भी काफी टाइम पहले से 1850 से चेन्नई में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स एस्टेब्लिश हो गया था. तो इन दोनों में जो पढ़ाई है काफी सेंचुरी से चल रही है. ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट कि इनमें जो एजुकेशन है काफी 4-5 सेंचुरीज ओल्ड है. नेक्स्ट. सो थोड़ा सा दोनों में और डिफरेंस क्या है अगर हम लोग उसको देखें तो आर्ट्स जो है थ्योरी एंड फिजिकल एक्सप्रेशन विच इज फाउंड इन कल्चर एंड ह्यूमन सोसाइटी. इट हैज वेरियस फॉर्म्स लाइक लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स. इट्स मोर ऑफ एप्लीकेशन. It acts as a medium to communicate with human beings about changes that took place in the environment at time passed from pre-ancient era to modern era with the help of sculptures, pictures, books, etc. In humanity, it's a study of how people process and document the human experience. It uses arts to express their experience. In the modern era, it is compared by natural, social sciences, and even professional training to bring differences between humanities and other things. It includes literature, modern ancient languages, history, philosophy, human geography, law, religion, politics, and arts. Next. अगर हम देखें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में बहुत सारी स्ट्रीम्स है पढ़ने के लिए. आप देखिए, आई हैव लिस्टेड ऑलमोस्ट 25 streams here, starting from anthropology, archaeology, economics, criminology, education, environmental studies, foreign languages, geography, history, home science, Indian languages, international relations, liberal arts, linguistics, media studies, philosophy, political science, psychology, social sciences, social work, sociology, or women's studies. So plethora of options available in arts and humanities. I have listed few of them. This is not an exhaustive list, but you can have an idea. Next. What kind of aptitude is required? The aptitude required can be grouped in 4 major categories: creative and critical thinking, observations, empathy and insight, और communication. मेरे ख्याल 4 जो बहुत important है, हम one by one देखेंगे इनके बीच में कि क्या क्या इनके अंदर aptitude की डिटेलिंग जो है which is required to become successful in career in arts and humanities. Next. So creativity and critical thinking talks about ability to think out of the box, challenge the status quo, जो चल रहा है उसको बदलने की, raise questions and ask the right, ability to think clearly and rationally, adapt to complex workplace structures and environments as a professional.
आप जब काम करते हैं तो आपको वर्क प्लेस में बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है, तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस स्ट्रक्चर पे जहाँ पे लोगों की अलग अलग हैबिट्स होती है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, उसके बीच में आप कैसे काम कर सकते हैं. To develop a critical thinking approach, learn observations, analysis and interpretation skills, expand and discover possibilities in almost every aspect of their life. So this is about creative and critical thinking. Next, observations. Observations basically आपने आसपास देखना, चीजों को ऑब्जर्व करना, उनमें से कुछ डिराइव करना, इंटरप्रेट करना. टेक नोटिस ऑफ की फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स अराउंड. हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, ऑब्जर्व करना और उसमें से लर्न करते रहना. Awareness of small to bigger aspects in both beneficial in the short run and long run. It's a necessary life skill. Today's young minds are already well equipped with advanced technology that observing. पहले टाइम था कि हमें बहुत ज्यादा चीजें दुनिया की पता नहीं रहती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग इमीडिएटली किसी भी समय दुनिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं. दुनिया में जो भी हो रहा है अभी 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले हुआ और हमें उसको पता चल जाता. तो टेक्नोलॉजी इज अ बिग हेल्प इन इम्प्रूविंग, बट ये उन्हीं के लिए हेल्पफुल है जो ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो चीजों को देख पाते हैं रेगुलरली. नेक्स्ट, एम्पैथी एंड इनसाइट. हम सब लोग फैमिलियर है इससे. एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन द वर्क प्लेस बट आल्सो इन वंस पर्सनल लाइफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि करुणा, एक तरह से किसी के लिए फीलिंग्स रखना. लर्निंग इन डेप्थ अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर मेक्स वन फॉर एक्सेप्टेबल. Empathizing is about deeply understanding problems. When design thinking is applied in real life, students learn to empathize and understand themselves and others better. Using insights and observing the details, students get to take bigger life decisions more effectively. So empathy and insight. Next, and communication, as we know, is very important. और communication का role जो है हमारे day to day life में, work place में, आगे career में काफी important होता है. And student will appreciate it over a period of time how communication is important. और बहुत सारी चीजें जो है communication से बिगड़ भी जाती है और बनती भी है. Next, हायर स्टडीज के ऑप्शन अगर देखें इसमें तो आप देखेंगे कि it's a complete list of more than 100 career options after 12th in arts and humanities. मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा है. I'll pause the slide for 5 seconds. You can see there are a lot of options available, and this will be made available to you by Susma Science Center whenever you want. और काफी सारे options हैं इसमें, हम देख सकते हैं. I have tried to list it as many as possible, and you can add more into that because this is not an exhaustive list. Okay, next. अगर हम देखें तो जो कॉमन एरियाज है, जो पॉपुलर एरियाज, आई हैव ट्राई टू क्लब इन इट फ्यू कैटेगरीज लाइक फाइन आर्ट्स, एजुकेशन, ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, सोशल वर्कर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइन, एनिमेशन, सोशल स्टडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके बारे में आज हम थर्ड सेशन में बात करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बिजनेस, जिसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में अभी सुषमा बात करेंगी सेकंड सेशन में, और साइकोलॉजी एंड लॉ. लॉ के बारे में हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं डिटेल में, और जो लोगों ने नहीं देख पाया वो उसका वीडियो जो है देख सकते हैं सुषमा साइंस सेंटर के पेज पर जाकर. सो दीज आर 15 मेजर एरियाज which I have tried to cover in arts and humanities, जहाँ पे ज्यादातर कैरियर्स जो है स्टूडेंट जो है ऑप्ट करते हैं आजकल. I'll touch upon a few of them. Next, जो भी स्टूडेंट जो है 11th 12th में आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट्स के साथ सबसे बढ़िया अच्छी चीज है आर्ट्स में, आप 11th 12th में कोई भी स्ट्रीम ले, आर्ट्स ले तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप कॉमर्स भी लेते हैं, साइंस भी लेते हैं, और उसके बाद 12th के बाद आप स्विच करते हैं आर्ट्स में, तो इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपने आर्ट्स अभी ले लिया और बाद में 12th के बाद आपको लगता है कि मुझे साइंस में जाना है, तो फिर आप नहीं कर सकते स्विच. इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अभी 11th 12th में, आगे के अपने कैरियर को ध्यान में रख के ले, कि अगर आपको लगता है कि मुझे आर्ट्स स्ट्रीम के फॉलो करना है, तो अभी से आप आर्ट्स पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए. और अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मुझे साइंस पढ़ना है, तो आप साइंस का ऑप्शन लें. कॉमर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफी चीजें कवर कर चुके हैं. सो ये जो पॉपुलर डिग्रीज है, जो नॉर्मली बीए इज अ वेरी पॉपुलर डिग्री, इसके अलावा बीबीए और बीबीए और बीएमएस ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीबीए देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है बीएमएस देती है. बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो लोग क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह में जाते हैं,
BJMC जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है या टेलीविजन मीडिया, इनमें जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म जाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह इंडस्ट्री में, उनके लिए BJMC अच्छा कोर्स हो सकता है। जो लोग फैशन में इंटरेस्टेड है, फैशन डिजाइनिंग में, बैचलर फैशन डिजाइन जो है उनके लिए कोर्स होता है। ऊपर वाले कोर्सेज 3-3 साल के होते हैं मोस्टली, बाकी ये दोनों 4 साल के। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आजकल गवर्नमेंट ने जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों को 4 ईयर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है नए, तो वो ये लोग जा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, जिन लोगों को लगता है कि हमें फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनना है या उन्हें इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स वगैरह की टीचिंग में, so they can go for bachelor of physical education after graduation. Bachelor of business studies, BBS is another program like BBA, BMS and BSW, जो लोग सोशल वर्क में या NGOs वगैरह में बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं या जिनको पब्लिक लाइफ में इंटरेस्टेड है, वो लोग जो है ये BSW का कोर्स होता है, ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्हीं में बहुत सारे जो है फील्ड्स हैं, उनमें मास्टर्स डिग्री होती है, जैसे BMA MA होती है, BSW है तो MSW होता है, BMS है तो MSM होता है, B.Ed के साथ M.Ed होता है, BFA है तो MFA होता है। तो जो डिग्री आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन पे, उसी के बाद में आगे उसी में आप और बेटर स्पेशलाइजेशन करना है आपको, और आपको डिटेल स्टडी करनी है और आगे करियर बेटर करना है आपको, तो आप जो है मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। और इन सभी में जो है मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है। लाइब्रेरी साइंस एक एरिया होता है जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। बी लीव होता है उसमें, तो एम लीव होता है बाद में मास्टर्स के लेवल में। जैसे BJMC होता है जर्नलिज्म में, ऐसे मास्टर्स भी होता है उसमें, MJMC मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें आप, इसके अलावा आप कई बार चेंज भी कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आप कोई अलग डिग्री की और आप मास्टर्स जो है किसी और चीज में भी कर सकते हैं। काफी रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए, एकदम से नए फील्ड में कई बार प्रॉब्लम भी आती है। तो हम लोग कोशिश करें कि जिस फील्ड में हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी में और आगे स्पेशलाइजेशन करके मास्टर्स भी कर सकते हैं। और कुछ जो है कैरियर जो है उनमें अलाउ, मास्टर्स डिग्री उन्हीं में अलाउ करते हैं जो कहीं ना कहीं आपका अंडरग्रेड का सब्जेक्ट रहा होता है। तो ये आप देख कर करें, पहले से ही प्लान करके रखें कि हमें आगे मास्टर्स किस में करना है, तो हम ग्रेजुएशन उस किस चीज में करें, तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट, सो कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, ये तो डिग्री थी, अब ये डिग्री कौन कौन से कॉलेज है जो प्रोमिनेंट कॉलेज है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जिन लोगों को लगता है कि हमें तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा है वर्ल्ड वाइड, सो यू कैन ट्राई फॉर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स UK, यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट लंदन, उसके बाद जो है पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन ऑफ द न्यू स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स में है, MIT रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन है, मिलान में जो है इटली में कॉलेज है, ऑल्टो यूनिवर्सिटी फिनलैंड, दी आर वन ऑफ द टॉप कॉलेज। ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट UK में है, स्कूल ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, प्रैट इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स, दीज आर सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं अगर आपको लगता है हमें ग्लोबल लेवल पे, दोज हु आर कैपेबल, जिनको लगता है कि नहीं हमें तो बहुत टॉप लेवल की या ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटी से हमें आर्ट्स में डिग्री करनी है, तो यू कैन ट्राई। इनकी डिटेल्स जो है इनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो दुनिया में 3 जो है ग्लोबल जो है ना यूनिवर्सिटी रैंकिंग के सिस्टम पॉपुलर है। QS है, टाइम्स हायर एजुकेशन है और ARW। तीनों की जो है साइट्स पे उन पर रैंकिंग आप देख सकते हैं, कॉलेज के बारे में स्टडीज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं तीनों के बाद, तीनों की रैंकिंग्स देख के वेरियस कॉलेजेस को ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट, टॉप 10 लेवल कॉलेज यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटीज, स्पेशली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पे और फोकस करें तो यही जो यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, येल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, NYU, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, Princeton University, Columbia University, these are very famous universities. Next, और अगर हम एशिया में देखें, अगर हम ग्लोबल, किसी को लगता है कि हम ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल की वजह हम लोग एशिया में ही देखना चाहते हैं, सो यू कैन सी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, सिंगापुर, पेकिंग यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, और ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। मेजरली चाइना, ताइवान, जापान और सिंगापुर में यूनिवर्सिटी है। तो आप इन यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं, ये भी QS वर्ल्ड रैंकिंग से ली गई है, एंड दीज आर द टॉप 10 यूनिवर्सिटी। शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, Fudan University, China. These are some of the top universities.
where you can find out various courses for arts and humanities. Next. अपने इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो है ये हम लोगों ने इंडिया में बहुत ज्यादा रैंकिंग के स्ट्रक्चर आर्ट्स में कॉलेज स्ट्रीम वाइज बहुत अवेलेबल नहीं है, पर एक वेबसाइट है जो ये लिस्टिंग करती है, उसमें हमने collegedekho.com से लिया है. NID Ahmedabad is considered as one among the top institutes for arts and design. Industrial Design Center IIT Bombay का is very famous. काफी पुराने कॉलेजेस हैं दोनों. आर्क एकेडमी ऑफ डिजाइन बिजनेस. NIFT ने अभी काफी सारे कैंपसेस अपने पूरे इंडिया में, NID के काफी सारे कैंपस है, पर्ल एकेडमी मुंबई, और NIFT और NID के कैंपसेस है कंट्री में अलग अलग. सिम्बॉस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. These are some of the top colleges in India where you can study various courses related to arts and humanities. Next. कुछ और जो है कॉलेजेस जो है जिनमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अच्छे कॉलेजेस हैं. लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली में है, लोयला कॉलेज चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सेंट जेवियर्स मुंबई, मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली में है, हंसराज कॉलेज है दिल्ली में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, रामजिस कॉलेज और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई. सो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई में काफी अच्छे अच्छे कॉलेज है जहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के काफी सारे ऑप्शंस बच्चों को अवेलेबल रहते हैं. तो अगर आप पढ़ाई करें इनमें करना चाहते हो तो अच्छे कॉलेज से करें, इनमें आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छी फैकल्टी होती है, अच्छी फैसिलिटीज होती है, एंड यू विल गेट गुड जॉब प्लेसमेंट एज वेल फ्रॉम दीज कॉलेजेस. नेक्स्ट. कई बार सोचते होंगे बच्चे कि IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है. बहुत सारे कॉलेज IITs के जो है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भी और कोर्सेज ऑफर करते हैं, और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं. सो कुछ कॉलेज में आइडेंटिफाई किए जिनमें बैचलर ऑफ डिजाइन और MA मास्टर ऑफ आर्ट्स के कोर्सेज चलते हैं. आप देख सकते हैं कि IIT जबलपुर, IIT बॉम्बे में और IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, इन सब में बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन के कोर्सेज चलते हैं. IIT मद्रास और IIT गांधीनगर ने अभी रिसेंटली कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं. IIT मद्रास में तो काफी टाइम से चल रहे हैं, IIT गांधीनगर ने कुछ आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में कोर्सेज लॉन्च किए हैं. इनके ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे लोग डिग्री प्रोग्राम्स रन करते हैं. इनका अपना एंट्रेंस प्रोसेस भी होता है अलग से, आप इनकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट. These are lot of entrance examinations. It's very difficult to pinpoint one single exam because बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं. So I have tried to list it. I'll pause this slide for few minutes, few seconds, and then you can see area जो भी आपका इंटरेस्ट का फाइन आर्ट्स का है तो उसके लिए एग्जाम्स हैं, UCET वगैरह है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए अलग है, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर के लिए NID NIFT के एग्जाम्स हैं, एनिमेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन टीचर से रिलेटेड होते हैं एग्जाम, CTET वगैरह, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जामिया मिलिया और इन सबके इंस्टीट्यूट के, सिम्बायोसिस के, एंड सोशल वर्कर के रूप में भी जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, AMU है, ये काफी सारे कोर्सेज करवाती है. तो आप ये सारी वेब चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्स रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पे जाके, क्योंकि कोई एक नेशनल लेवल का ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है जिसमें बहुत सारे कॉलेज आते हो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अभी. लेकिन अभी हर एक कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करती है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्साइट्स टू यू, and accordingly you can contact us also. We'll find it out for you to define what exactly are the examinations which you should look for, or you can appear in those examinations or prepare for. So we'll help you out. Yeah, this is just for the sake of reference. Next, Sushma. अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्स को मैंने यहाँ पर ट्राई किया है. UCET एग्जाम हो जाता है जो IIT बॉम्बे कराती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉडी है. NIFT का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो NIFT करवाता है अक्रॉस इंडिया के NIFTs में एडमिशंस के लिए. नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन भी गवर्नमेंट का ही है, वो भी अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाता है. बहुत सारे कॉलेज हैं इसके लिए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है. इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है दिल्ली में जो है, उसमें भी काफी सारे कोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. नेक्स्ट.
अगर हम यूसीट की बात करें, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो डिजाइन के लिए, जिन लोगों को डिजाइन में इंटरेस्ट है, खासतौर पे बैचलर ऑफ डिजाइन का कोर्स होता है 4 साल का, और 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी बोर्ड से। और 2021-22 में जैसे मैंने बताया, कुछ ट्रिपल आईटीज और कुछ आईटीज में इससे सीट्स आपको मिल जाती है, तो 179 सीट्स है इसमें। लेकिन सबसे खास बात ध्यान रखें, यूसीट के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट अलाउड है, और वो भी जिस साल आपने 12th किया और उसके वेरी नेक्स्ट ईयर। सो ये बहुत ध्यान रखें, अगर आपको यूसीट की तैयारी करनी है तो आप पहले से प्रिपरेशन शुरू करें, सो दैट आप जो चांस मिल रहे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इनके जरिए आप आईटी बॉम्बे, आईटी गुवाहाटी, आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी जबलपुर में, ये 2 पार्ट में एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक तो हिस्सा इसका, और दूसरा पेन एंड पेपर होता है, इसमें आपके ड्राइंग स्किल्स चेक करते हैं। तो अगर आपको डिजाइन में करियर बनाना है और अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है, लाइक आईआईटी, ट्रिपल आईटी, so this is one of the best exams that you should go for. Next, इसके अलावा जो है NIFT जो है, उसके एग्जाम्स होते हैं B-, M-, MF के लिए। आप शुरू में, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आप पहले B- पे फोकस करें, और उसमें जो है 12th पास स्टूडेंट दे सकते हैं इसके लिए, और 3000 से ज्यादा सीटें हैं पूरे इंडिया में इसमें, और पूरे कैंपस इसके काफी 17 कैंपस है पूरे इंडिया में। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास मुंबई में भी इसमें सेंटर है, और काफी सारे स्टेट जो है सभी में इसके कॉलेजेस हैं, 17 कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में। और रिजर्वेशन की पॉलिसीज वगैरह इसमें जो भी है, एग्जाम इसका ऑफलाइन होता है, और 3000 से ज्यादा सीट अवेलेबल है, रिजर्वेशन की पॉलिसीज वगैरह सब इंक्लूड करके। सो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एग्जाम होता है। इसके स्ट्रक्चर हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। एनआईडी का भी डिजाइन टेस्ट होता है, उनमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, और 128 सीट से इसके अंदर एनआईडी के एप्टीट्यूड में ऑफलाइन एग्जाम होता है। +2 वाले स्टूडेंट दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट, जामिया मिलिया का एंट्रेंस टेस्ट होता है। बीए ऑनर्स 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, 4 साल का प्रोग्राम। यू विल रियली फाइंड अ बीए ऑनर्स कोर्स 4 इयर्स, और उसमें फैशन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, फैशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मेजर जो एरियाज हैं आपको, जिसमें अगर फैशन डिजाइन में इंटरेस्ट है 40 सीट्स है, कम्युनिकेशन डिजाइन 40 सीट्स है, इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन में इंटरेस्ट है 40 सीट्स है, फैशन बिजनेस को कैसे मैनेज करना है उसमें इंटरेस्ट है, तो देयर आर 30 सीट्स। और इनका अपना आईमेट एग्जाम होता है ऑनलाइन, और पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होता है इनका। सो जामिया मिलिया इज अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर। नेक्स्ट, कंपटीशन लेवल की बात करें, इन जो टॉप कॉलेजेस में काफी अच्छा कंपटीशन आपने देखने को मिला है कि बहुत कम सीट्स है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में 37 सीट्स हैं, आईआईटी गुवाहाटी में सिर्फ 56 सीट है, आईआईटी हैदराबाद में सिर्फ 20 सीटें हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिपल आईटी जबलपुर में सिर्फ 66 सीट है, 179। इनमें से 50% सीट ऑलमोस्ट रिजर्व कैटेगरी में है, और 50% ओपन कैटेगरी में। सो यू कैन सी हाउ कॉम्पिटिटिव दीज एग्जामिनेशंस आर। नेक्स्ट, आप देखें NIFT के अंदर देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। फैशन डिजाइन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो लगभग 700 सीट्स है। लेदर डिजाइन, जिन लोगों को लगता है फुटवेयर डिजाइन वगैरह में इंटरेस्ट है, उसमें 168 सीट्स हैं। अलग अलग ब्रांचेज हैं, आप उसमें स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। आपको एक्सेसरीज डिजाइन करना है, क्या शौक है, तो 600 सीट्स हैं। टेक्सटाइल या क्लोथिंग डिजाइन में इंटरेस्ट है, 646 है। नेटवियर, जो नेटवियर होती है, वुलन्स वगैरह होते हैं, 296 है उसमें। फैशन कम्युनिकेशन इज अ वेरी ग्रोइंग एरिया, इमर्जिंग एरिया, यहाँ पे 642 सीट्स हैं। देन मास्टर्स प्रोग्राम है। सो बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, सीट्स बहुत कम है टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स में। सो दीज आर वेरी कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट, इसके अलावा जो है आप एनआईडी के अंदर भी देख सकते हैं कि कितनी तरह की जो है, अगर आप बैचलर्स पार्ट पे देखें तो एनिमेशन फिल्म डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जीबिशंस वगैरह लगती है। फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, अगर आपको फिल्म और वीडियो में इंटरेस्ट है। ग्राफिक डिजाइन में आपको जो क्रिएटिव ग्राफिक्स आजकल बनते हैं, मूवीज में भी काफी ग्राफिक्स यूज है। सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, एक पर्टिकुलर बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन है कि सिरेमिक्स में, ग्लास में आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है। फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन में आपको इंटरेस्ट है। देखिए बहुत कम कम सीट्स अवेलेबल है सभी में। प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, तो ये बहुत सारे एरियाज है। सुपर स्पेशलाइज एक तरीके से अंडर ग्रेड के लेवल पे आप इनको कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट एरिया है आपका, आप उसी में अपना ग्रेजुएशन का जो है स्ट्रीम, आप ब्रांच या जिसे कह सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, तो अगर हम देखें, एक जस्ट एग्जांपल में लिया है कि एनआईएफटी का जो एग्जाम था यूजी एंड पीजी कोर्स से लगभग 31-32 हजार स्टूडेंट 18-19 में बैठे थे, और लास्ट ईयर जो एनआईडी का जो एडमिशन टेस्ट था 2019-20 में, उसमें करीब 15,000 बच्चे बैठे थे। नेक्स्ट, सीट्स बहुत कम है, तो अगर हम एग्जांपल लें कि एनआईडी का एग्जाम है, 100 सीट्स अंडर ग्रेजुएट पर 15,000 बच्चे बैठ रहे हैं, दैट मीन्स कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। कई बार ऐसा लगता है कि आर्ट्स में तो यूं ही मिल जाता है एडमिशन या सीट्स कोई इजीली, ऐसा नहीं है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको वास्तव में जिनसे करने से आपको आपका जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर होती है, आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, वहां पे आपको कंपटीशन डेफिनेटली मिलेगा। और जहां कंपटीशन की बात आती है वहां पे सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, डिसिप्लिन और जो है ना अर्ली मूवर एडवांटेज, ये चीजें सारी काम करती है। तो अब आप 9th-10th में यू कैन टेक क्या करियर ऑप्शन लें, हम कब तैयारी शुरू करें, कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो पहले 12th कर लेते हैं उसके बाद सोचेंगे, देन बहुत कई बार लेट हो जाता है राइट करियर चूज करने में। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। जो भी करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, ये हमारे सीरीज ऑफ सेमिनार्स हैं, दीज विल हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग द थिंग्स। उसके बाद जब आप कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं, देन यू कैन कम टू सुषमा सेंटर ऑफिस और देन यू कैन डिस्कस द डिटेल्स इन डिजाइनिंग योर करियर। और फिर उसके बाद जो है आगे की स्टडीज करियर को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो है ऑप्शंस चूज करें। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड पैकेजेस की बात करें तो वी हैव कलेक्टेड सम डाटा फ्रॉम ऑफिशियल पेजेस ऑफ एनआईएफटी एंड यू कैन सी अभी पिछले 2 साल से जॉब मार्केट अच्छा था, लेकिन 18-19 में थोड़ा सा भी जॉब मार्केट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट स्टिल पीपल आर प्लेस्ड और इनमें जो है प्लेसमेंट्स हो रहे हैं इनके अंदर एनआईएफटी के। नॉट एवरीबडी इज गेटिंग द प्लेसमेंट, बट स्टिल सम पीपल आर गेटिंग ऑफिशियल प्लेसमेंट्स। कई बार बच्चे ऑप्ट आउट भी कर लेते हैं, कई बार कुछ लोग अपना काम भी शुरू करते हैं या खुद अपने लेवल पे जॉब्स भी ले लेते हैं। सो दीज आर ऑफिशियल नंबर्स, सो आई जस्ट ट्राई टू कलेक्ट इट फॉर द सेक ऑफ योर रेफरेंस। यू कैन चेक आउट द वेबसाइट्स, वहां पे अवेलेबल है एनआईएफटी की वेबसाइट्स पे ऑलरेडी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जहां पे 634 स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठे थे और 410 स्टूडेंट, लगभग 64 स्टूडेंट्स, 2 out of 3 students were placed, and the package went as high as up to 38 lakh rupees per annum, और average salary was around 14 lakhs per annum. So ऐसा नहीं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भी अच्छे पैकेजेस जो है करंट स्टैंडर्ड को देखते हुए बच्चों को मिलते हैं। और दिस इज नॉट वेरी ओल्ड, दिस इज लास्ट सेशंस 1920 के डाटा है बच्चों के, जो है इतना टफ टाइम के बावजूद भी इस तरह के पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं। नेक्स्ट, कोर्स ऑफ स्टडीज की बात करें तो मैंने एनआईएफटीज और एनआईडीज का जो है रेफरेंस लिया है यहाँ पे। तो बैचलर ऑफ डिजाइन 4 साल का प्रोग्राम होता है, लगभग 13,10,000 के आसपास उसकी 4 साल की फीस होती है। तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए, लगभग 3 लाख रुपए जो है पर ईयर का जो है इसमें एक्सपेंडिचर है। वेरी एक्सपेंसिव स्टडीज, बट इन गुड स्कूल्स इट हैपेंस, अगर वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से सपोर्टेड नहीं है तो the same, almost same for NID also. So be ready to shell out more for competition point of view से भी अच्छे कॉलेज जाने के लिए, और पढ़ाई भी उतनी जैसे कहते हैं ना, क्योंकि ये फील्ड बहुत क्रिएटिव फील्ड होता है, इनके लिए जो फैकल्टी होती है वो बहुत एम्पल अवेलेबल नहीं होती, बहुत कम फैकल्टी अवेलेबल होती है। और ये में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो ऑलरेडी अपने फील्ड में काफी एक्सपीरियंस होते हैं, गेस्ट फैकल्टी काफी यूज करते हैं, एक्सपर्ट्स को काफी यूज करते हैं। So those studies, cost of it becomes very expensive. So but this is the way things are. So you take your decision accordingly, be ready for this, this kind of structure is available there. Next, अगर हम कुछ अलग अलग फील्ड में, मैंने इंडिया टुडे की रैंकिंग को यूज किया है यहाँ पर। सोशल वर्क में अगर देखें, जिन लोगों को सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, बैचलर सोशल वर्क, मास्टर्स इन सोशल वर्क, और वो लोग फिर बाद में एनजीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, सोसाइटी जिनमें काम करना चाहते हैं। आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एरिया है इमर्जिंग जो है, जिसमें काफी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं, और उसके जरिए सोशल सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो TISS इज very big brand in social sciences. Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Rajagiri College of Social Sciences, Kochi, Department of Social Work, Delhi School of Social Work में
न्यू दिल्ली में है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क और लोयोला कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस त्रिवेंद्रम. दीज आर टॉप 5 कॉलेजेस इन सोशल वर्क. नॉर्मल आर्ट्स के कॉलेजेस हैं तो हिंदू कॉलेज, ये सारे दिल्ली के कॉलेज. एंड देन जो है मिरांडा हाउस इज वेरी पॉपुलर अमंग्स गर्ल्स, और बहुत ज्यादा वहाँ की जो एलुमनी सक्सेसफुल है. हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, दीज आर पॉपुलर कॉलेज फॉर आर्ट्स, गुड स्टडीज इन आर्ट्स. नेक्स्ट, फैशन में बात करें तो NIFT इज टॉप. उसके 5 कैंपस है, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, गांधीनगर. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, बेंगलोर कैंपस है. और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में देखें तो आप IMC न्यू दिल्ली, जामिया मिलिया का जो है सिम्बायोसिस का है. उसके अलावा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, हैदराबाद का जो है कम्युनिकेशन का मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है. दीज आर वेरी फेमस कॉलेजेस टू डू अ मास कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, अगर हम अंडरग्रेड के बाद कैरियर की बात करें कि क्या BA ग्रेजुएट कर सकते हैं, जॉब्स है जर्नलिज्म, जैसे मैंने बात किया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विस के बारे में हम अलग से बात करेंगे डिटेल में. सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, हिस्ट्री, पुलिसिंग, BPOs, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, रिलीजियस स्टडीज, इवेंट प्लानिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे कंपटीशन जॉब्स वगैरह. After graduation, you can go for higher studies. You can work in private sector in MNCs. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट, BDES या बैचलर फैशन मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए अगर आप देखें तो जॉब सेक्टर्स है ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, टेक्सटाइल डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, फैशन फोरकास्टर्स, कलर कंसल्टेंट, फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइन मैनेजर. ये सब ऑप्शंस आपके सामने निकल के आते हैं. ग्रेजुएशन के बाद वही सेम, यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज टू गेट सुपर स्पेशलाइजेशन ऑफ हाइपर स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, and you can work in private sector as government jobs or entrepreneurship as well. Next, career progression अगर हम देखें, नॉर्मली there are various careers in arts and humanities. So हम लोगों ने 1-2 एग्जांपल लिए हैं कि BDES के ग्रेजुएट अगर हों एज ए ग्राफिक डिजाइनर इन MNC में कैसे मूव करते हैं. तो जूनियर डिजाइनर से डिजाइनर, सीनियर डिजाइनर, देन डिजाइन मैनेजर, प्रोडक्ट डिजाइन डायरेक्टर, एंड देन क्रिएटिव डायरेक्टर. दिस इज अ टिपिकल कैरियर फ्लो फॉर ए बैचलर इन डिजाइन ग्रेजुएट्स जो है ग्राफिक डिजाइनर के रूप में किसी भी MNC वगैरह में. नेक्स्ट, आप देखेंगे कुछ टॉप परफॉर्म पर्सनालिटी जो इस फील्ड से निकल के आए, जिन्होंने अपना कैरियर बनाया. मैंने अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग ऑप्शंस में आर्टिस्ट को रखा है. सव्यसाची मुखर्जी इज ए वेल नोन फैशन डिजाइनर. ही डिड हिज बैचलर ऑफ डिजाइन, NIFT के ग्रेजुएट हैं, और आज फैशन वर्ल्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है. हर कोई इनके बने हुए कपड़े पहनना चाहता है, इनके डिजाइन के कपड़े पहनना चाहता है. सव्यसाची मुखर्जी. अर्नब गोस्वामी इज अ वेल नोन जो है मीडिया पर्सनालिटी है. टेलीविजन पे हम इनको रोज देखते हैं. अभी ऑफ लेट काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं इनके बारे में. और ये हिंदू कॉलेज दिल्ली के पास आउट है. इन्होंने वहाँ पे सोशियोलॉजी में डिग्री किया है. मकबूल फिदा हुसैन लेट जो है काफी बड़े पेंटर रहे हैं. JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की थी, और भी इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज, तो वहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट निकले हुए हैं. मेधा पाटकर इज अ वेरी वेल नोन इंडियन सोशल एक्टिविटीज. नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने काफी वो चर्चा में रही थी, और इन्होंने मास्टर्स डिग्री किया सोशल वर्क में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. सो आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट फ्यू पर्सनालिटीज कि कैसे लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके उन्होंने अपने कैरियर्स में एक अलग मकाम बनाया है. सो doing a degree from a prominent or good college, it always helps. Next, ये प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें आगे चलें. नेक्स्ट, सो अगेन वही अपना जो भी कैरियर है आप उसको प्रोफेशन को वाइजली चूज करें. आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने स्किल को देखते हुए, जॉब मार्केट की अवेलेबिलिटी आने वाले टाइम के अंदर, जो हम लोगों ने शुरू में पहले सेशन में कवर किया था कि कौन कौन से बेसिकली आज की जो प्रॉब्लम्स हैं कल के लिए उनमें जॉब मार्केट बनेगा या उनकी डिमांड बढ़ेगी. तो वैसी प्रॉब्लम्स जो आने वाले टाइम में लोग हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उन्हीं से आपको, क्योंकि जॉब का मतलब
कैरियर वैसा भी होना चाहिए जो आपको पे कर सके, आपको सक्सेसफुल बना सके, आपकी लाइवलीहुड अर्न कर सके, आपके डिपेंडेंट्स है, आपका खुद का अपना जो है, आप जो है फाइनेंशियल्स को आप मैनेज कर सके। सो एक शौक होना अलग बात है, लेकिन उसको कैरियर के रूप में लेने के लिए जरूरी है कि जॉब सिनेरियो आने वाले टाइम में उसका डिमांड जो है उसकी जो आने वाले टाइम में हो। तो फ्यूचर कैरियर स्कोप को देखते हुए आप डिसीजन ले। नेक्स्ट, एफएक्यूज वगैरह है, ये हम जो है सेशन के बाद में लेंगे। एक साथ आप अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको साथ में रखें, एंड वंस ऑल द 3 सेशंस आर ओवर, विल टेक अप द क्वेरीज वन बाय वन। नेक्स्ट, thank you. This was all about from me on career in arts and humanities. Thank you, Sushma. Over to you. Thanks, Manoj. Let me get started on management and then we'll come back to you. Okay, so good morning again. There are some people who have joined new. So about we will go through these topics: careers in management, then what are the skill sets required, a management pathway, and management institutes. A very popular field, many people are aware of it, but there are few nuances that we have to look into. That is what I am going to cover. Of course, those who are interested can touch base with us, and we will also provide individual counseling should it be required. Uh, Sorry, so there was some typo. We are talking of the management related courses. So lot of programs are available. Typically known are the BBA, which is Bachelor in Business Administration, Bachelor in Business Studies. So these are two typical management courses. But luckily, these days, specific courses have also started. For example, there are Bachelor of Sport and Recreation Business. So it's a management related to sports and recreation, hospitality, leisure, tourism management, sports management, then banking and insurance management, international business, aviation management, healthcare management, and event management. So these are all bachelor related courses. And so it's when we talk of management, it is not just that BBA or BBS that you have to do. You can go into specific interest areas and do management course related to that. So there are people who are from sports background. They can work into sports and recreation management or purely sports management. So at this point, I will try to give an example on person who has done, who was leading our team, hockey team. He did management from ISB, and then he is leading an institute which is for Gold for India or Quest for Gold, something like that, right? Quest for his name is Viren Raskina. So you can check his profile and how he has transversed and progressed. So it's an interesting area in which you can get into in terms of business studies. What are the skills required? Because you're managing stuff, that means you're managing people, you're managing teams, you're managing the whole organization. um, you have to connect with many people. So first and foremost is very very strong communication. Second is interpersonal skills. Of course, you have to understand each other. You have to have leadership skills, because if you do things on larger scale, things may go wrong. You have to immediately think of a better solution. And of course, you should be interested in problem solving skills. You should have that. And I'm just focusing on the top skills. Of course, it does not mean that you don't have to have mathematical acumen or you don't have to have analytical abilities. All those are required, but these are very very core to any kind of management. Now, if we take management pathway, we have seen people from different streams finally getting into management. If we talk of very specific like travel and tourism and all, then it is only specific management courses that you are supposed to do. But then there are general management also available, which can be done from any stream that you take up. So after 12th, you can either do BTech, you can do BSc, BCom, BA, or
any specific management that I spoke about, like travel and tourism or sports or any kind of other kind of management, it could be public affairs or these kind of courses, then you can either take up a job after the graduation, or you can do MBA, that is specialization. So those who have done graduation in management can do masters in management. Those who were coming from different streams like BTech and BSc, they can do masters in business administration. If you are interested in research and management or in teaching related areas, you can do PhD in management as well. But for your working, I don't think you need PhD as such. Whereas if you are doing research in sciences and all, you as a career option in science research, you need to do PhD. But when you want to do just the management, then you may not need to do a PhD as such. Now, after 12th, what do you do? So, there is one very good exam that I want to quote here, which is IPM, and it is conducted by IIM Indore. And you can take up this, and you get a now it's a 5-year program, which is where you get graduation as well as management related stuff. Very beautiful course. So, yes, Manoj, you want to say something? Yeah, I am Indore was the first institute. Last year, I am Rohtak has also started similar program. Okay, Okay, and sure. I am Ranchi. The new Ranchi has announced it this year. Okay. So this is going to be a very popular program in the days to come. When I guess all the IMs will have this kind of program this year. Okay, very good information. That speaks for itself that this is becoming popular, and I'm sure because the seats might be limited at one institute, other institutes are also venturing into these kind of programs. Then many other institutes which provide BBA or something, that kind of courses, they are taken either through their own specific schools examination, their that college examination, or some of them intake through class 12th marks. When we talk of after graduation program, then there are common entrance tests, CETs, for different states. There is CAT examination. I have not spoken much about it because it's not immediately after, but there are exams like CAT, CET, and GMAT, which you could take for management MBA related programs. And then there are specific institutes also taking, like Symbiosis has its own entrance test. They also take up through CET and CAT, but they have their own examination also. Same way for different institutes. If we talk of top institutes, the list that was there for uh, that was there for other courses, this also is similar. Harvard, MIT, Stanford, London School of Economics, and Oxford tops even in the management courses. You must have heard of people who graduate from Harvard as a management graduate, and they get into top jobs. In terms of institutes in India, we have Indian School of Business, which is one of the top institutes for management. We also have IIMs, which are very, very reputed institutes. Quite old as well. IITs also offer a management program, so they have a school of management. SOM is what they call, and most of the IITs have a school of management into their in their streams. Various universities also offer, like Pune University, Delhi University, Mumbai University. So, Pune Universities, it is called Pumba, which is the management program that they have. Other institutes are like XLRI, MDI, NI, NMIMS, Symbiosis, SP Gen, Great Lakes, MET Business School. From XLRI to MET, I have put them in order of ranking, which we have got from the Government of India ranking, which has started. So these are some top institutes which provide MBA, as well as they have some of them also have their bachelor program
exam in management. So you can look into these, and they either intake through 12th or through their own entrance, like Symbiosis has its entrance, like that. So that is all what I have covered on management, because this is more done after graduation. It is better done after graduation. But you can, at the end, if you have any questions, we could certainly take on management. I will start the next presentation. This is the management is all about leadership, and I don't recollect very well, but there was a joke that people who work hard in their 9th, 10th, 11th, 12th get into technology and medicine sciences, but they are little lower on the platform than people who have not spent so much time. They get into management, do MBA and something management, but they work. Engineers work under these management people, and people who have just not worked hard get become politician, and they are over and above, and in between somewhere bureaucrats were also there. But I don't think that is true anymore. Even politicians that we have these days are very well qualified, and qualification does not necessarily mean university qualification. There are people who have traveled across the world, or especially in India they have traveled, and that is how they have gathered the skills that they have, and that is why they are able to rule the world. So I don't want to say that management people will uh, work over and above the engineers and all. So those who are interested can certainly do engineering and get into management. That will be additional skills. But yeah, you need people who do have soft skills, interpersonal skills, and communication skills to do a good job with your team. So thank you so much for attending. We are getting into the next session, which is for civil services and defense services, one of the most things which will give you proud, which make everyone proud of you. So I'm just opening it, Manoj, and then over to you. Yeah, thank you, Sushma. Yes, Sushma. Yes. Yeah, thank you. We can, pass the initial slides as we have already been introduced. Okay, so I'm coming back with my, another session. This is about civil services and defense services. Basically, government jobs, है ना. ज्यादातर लोग रहते हैं कि सिविल सर्विसेज जो आपको पावर देती है, पोजीशन देती है, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट बिग ब्यूरोक्रेसी ऑफ द सिस्टम. बहुत अच्छा एक आपको कैरियर मिलता है. और एक डिफेंस सर्विसेज जो आपको जितना है कि प्राइड देती है, आपको जो है कंट्री को सर्व करने का मौका देती है, और एक आप अलग एक रेस्पेक्ट जो है सोसाइटी के अंदर बनाते हैं. तो सिविलियंस और जो है ना आर्मी पर, ये एक तरीके से जो है फोर्सेस. सो इनमें मैंने टॉप एग्जाम्स को कवर किया है. सिविल सर्विसेज में जो टॉप लेवल के एग्जाम्स IAS IPS उनसे रिलेटेड ही है. ज्यादा फोकस यूं तो बहुत गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बट मैंने फोकस किया जो टॉप लेवल के एग्जाम्स पे है, क्योंकि अदरवाइज तो पूरे दिन भर बात कर लो तो देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर यू कैन फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब. बट आई हैव टॉक्ड ओनली अबाउट सिविल सर्विसेज जो टॉप लेवल की एग्जाम्स होती है, और डिफेंस में आई हैव टॉक्ड अबाउट CDS एंड NDA ओनली. इसके अलावा भी थोड़े छोटे छोटे अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं, बट मोस्टली people get into armed forces through CDS and NDA. So next, now I'll first take up Indian civil services in first part of the session, and then later we'll talk about armed forces or defense exams. सिविल सर्विसेज जैसे सब लोग जानते हैं कि मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है इंडिया की, और वन ऑफ द प्रीमियम सर्विसेज है गवर्नमेंट की, जिसे कहते हैं कि टॉप लेवल की सर्विसेज है. उनमें इस एग्जाम के जरिए जो है आपको एडमिशन मिलता है, जॉब्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, पूरे देश को सर्व करने का आपको मौका मिलता है इन वेरियस कैपेसिटीज, ऑफर्स एन अट्रैक्टिव एंड चैलेंजिंग कैरियर. आपका जो कैरियर बहुत जो है फाइनेंशियली काफी रिवार्डिंग होता है,
और पोजीशन भी आपको मिलती है और सोसाइटी में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बट इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस बिकॉज पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यू नो, तो उन सब के हिसाब से भी आपको बहुत चैलेंजिंग कैरियर होता है. नेक्स्ट, ये सारे जो एग्जाम्स है इंडियन सिविल सर्विसेज का, जो आईएएस वगैरह का जो एग्जाम जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 1926 में एस्टेब्लिश की थी, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस. और ये जो प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ये इसकी वेबसाइट है. और ये इस एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, बट प्योरली फोकस ऑन रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज. उनके लिए रिक्रूटमेंट करती है, मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज, उनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह है, और मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर, किसी का कहीं पर ट्रांसफर. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेसिक फंक्शंस है वो है यूपीएससी. सब लोग बताइए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. नेक्स्ट, aptitude required, you know, almost a lot of things are common in various streams, but empathy, tolerance and compassion, reliability of administrative operations, objectivity and dedication, the service principle to serve the people, integrity, obviously it is expected from civil servants because you know there are a lot of issues because of corruption and all these things. So integrity is a major area which is expected from a civil servant. Openness, responsibility, impartiality, objectivity, all these are various aptitudes which are required or expected to become a successful civil servant. Next. So I have summarized the whole structure into this slide. Mota mota जो civil services का है, there are 25 services. टॉप पे है आईएएस और आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है. ऑल इंडिया इसका मतलब कि लोगों को पूरे इंडिया के लेवल पे कैडर मिलता है और पीपल कैन ट्रांसफर, यू नो, वैसे नॉर्मली स्टेट के अंदर ही रहता है जब उनको स्टेट कैडर मिलता है, बट लेटर ऑन दे कैन बी ट्रांसफर टू सेंट्रल लेवल दूसरे स्टेट वगैरह में. तो आईएएस आईपीएस एट द टॉप है. उसके बाद जो ग्रुप बी सर्विसेज है, तो कुछ जो है यूनियन टेरिटरीज वगैरह का भी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, लाइक दिल्ली, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी है. इसके अलावा आर्म फोर्सेज का जो हेडक्वार्टर है उसको भी सर्विसेज जो है ग्रुप बी से मिलती है. इसके अलावा सेंट्रली बहुत सारी सर्विसेज होती है ग्रुप ए में ही. फॉरेन सर्विसेज है, ऑडिट है, सिविल, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, रेवेन्यू, ट्रेड, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज ग्रुप ए में ही, जहां इन एग्जाम के जरिए जो है लोगों को उसमें पोजीशंस मिलती है और जॉब्स मिलते हैं. नेक्स्ट. So we'll see selection process, exam pattern, eligibility, age, attempts and reservations for civil services. Next. जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो नॉर्मली जो ग्रेजुएट्स के लिए होता है, कोई भी ग्रेजुएट होता है वो, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, मैं आज में बात करूंगा. सो ये जो प्रोसेस होता है दो स्टेज में होता है. पहला स्टेज होता है प्रीलिम एग्जाम जो हर साल जून में होता है, एवरी ईयर जून में होता है. उसके बाद प्रीलिम्स से लोग मूव करते हैं स्टेज 2 की तरफ, जो अगेन दो पार्ट में डिवाइड रहता है. मेंस एग्जाम होता है जो अक्टूबर में होता है, और उसमें से कुछ सक्सेसफुल लोगों का फिर जो है इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो मार्च में होता है, और मई में जो उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और उसके लिए जो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम लोग जो सेलेक्ट होते हैं फाइनली उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होता है सितंबर में नेक्स्ट ईयर. सो इट्स अ 1.5 year एंटायर प्रोसेस पूरा फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम टू द फाइनल ट्रेनिंग कमेंसमेंट तक. सो दिस इज द वे. और ये हर साल होता है प्रोसेस. इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन जो हर साल होती है, और गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज आती है उनके हिसाब से ये प्रोसेस हर साल होता है, कई सालों से हो रहा है रेगुलर. नेक्स्ट. इसमें अगर हम देखें तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी में 32 इयर्स का अपर एज लिमिट है और 6 अटेम्प्ट. बाकी अदर कैटेगरीज में जो है ओबीसी में जो है 35 इयर्स की लिमिट है, 9 अटेम्प्ट्स अलाउड है, 27% रिजर्वेशन है. एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल के लोगों के लिए 37 इयर्स का एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, और देयर इज नो जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है उनके लिए. बट पीडब्ल्यूडी में जो उनकी कैटेगरी है उसके हिसाब से अटेम्प्ट्स की लिमिट है. सो देयर इज अ स्टैंडर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी. नेक्स्ट. सुषमा, नेक्स्ट. ओके. सो इसमें नॉर्मली जो आईएएस और आईपीएस में ओनली इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है, जबकि अदर सर्विसेज में जो अपने आसपास की जो कंट्रीज है साउथ एशिया के, नेपाल है, भूटान है, तिब्बतन रिफ्यूजीज है,
इसके अलावा जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर गए थे और वापस इंडिया में आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, उनको भी अलाउ कर सकते हैं। बट आईएएस और आईपीएस के लिए सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। नेक्स्ट, जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम ग्रेजुएशन होती है। किसी भी सेंट्रल और स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो, इवन कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन भी अलाउड है अगर ऑफिशियल लिस्ट से सेलेक्ट की हो आपको। ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री भी अलाउड है इसके अंदर। इसके अलावा आप प्रोफेशनल डिग्रीज है, बीटेक, एमबीबीएस। इसके अलावा जो सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू जिसको ये अब सीएम में बोलते हैं, वो भी अलाउड है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री हो और किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री जो इंडियन जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। तो ग्रेजुएशन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। किसी भी स्ट्रीम में हो, कहाँ से हो सकती है, ये ऑप्शंस मैंने इसके सामने आपके रखे। सो इस ऑलमोस्ट सभी चीजें अवेलेबल है इसके अंदर, एप्लीकेबल है। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये एग्जाम जो होता है नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आप कोई भी कैरियर स्ट्रीम सेलेक्ट करें। अभी आप जब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रीम आप जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया इससे 3 लेयर्ड एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी स्टेज 1 होता है, देन जो स्टेज 2 है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मेंस एग्जाम जो रिटन होता है, एंड देन इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट, जो प्रीलिम का एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है जनरल स्टडीज का फर्स्ट पार्ट, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एक क्वालिफाइंग होता है। उसमें जिन लोगों के 33% मार्क्स आते हैं सब लोगों को क्वालिफाई मान लिया जाता है। और पेपर 2 की जो मेरिट होती है जिसको सीसेट बोलते हैं, ये भी जनरल स्टडीज का होता है। इसकी जो मेरिट होती है वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए काम आती है मेंस के लिए। सो पेपर 1 इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग। जिन लोगों के 33% से कम आए उन सब लोगों का पेपर 2 भी नहीं देखा जाता है। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने 33% आए पेपर 1 में, उन्होंने सी सेट में कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे उनकी मेरिट बनती है। तो पेपर 1 इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग। पेपर 2 दैट इज कॉल्ड सी सेट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग आउट कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो दिस इज द डिफरेंस। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं स्टेज 1 के, प्रीलिम्स के। इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने मार्क्स होते हैं इसमें नॉर्मली। ये है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद जो आप पेपर 2 देखेंगे, इसके स्टेज 2 देखेंगे मेंस का, सो वेरी एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन, बहुत सब्जेक्टिव होता है। और पेपर ए इसमें 2 शुरू में पेपर होते हैं। अब आप स्टेज 1 से स्क्रीन हो गया है सीसेट के थ्रू, एक और स्क्रीनिंग है यहाँ पे। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज का पेपर होता है और एक इंग्लिश का। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं जिनमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो है मार्क्स लाने पड़ते हैं, 25% मार्क्स, तो ही आप फिर बाकी के पेपर्स आपके चेक होते हैं। अगर आपके इन दोनों किसी पेपर में 25% से कम आए तो आपके बाकी के पेपर चेक ही नहीं होंगे, आप आउट हो जाएंगे कंपटीशन से। जैसे वेरी एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन, इट चेक्स यू थॉरोली, हर चीज इसके अंदर चेक कर लेते हैं आपका। अब जो मेन जो पेपर मेरिट के लिए सेलेक्ट होते हैं, मेंस के इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं लोग, वो 7 पेपर होते हैं इसके अंदर। आपका पेपर 1 होता है ऐसे, उसमें आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है, 250 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद वो पेपर 2 जनरल स्टडीज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, 250 नंबर का पेपर होता है। ये सारे रिटन पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव। पेपर 3 जनरल स्टडीज, अगेन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन 250 मार्क्स का पेपर है। पेपर 4 अगेन जनरल स्टडीज जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पेपर 5 जनरल स्टडीज का चौथा पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 250। तो 4 पेपर तो जनरल स्टडीज के होते हैं इसके अंदर। पहला पेपर ऐसे का होता है और 4 उसके बाद जनरल स्टडीज के जो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं आपके, छठे और 7वां ऑप्शनल। ये जो पेपर सारे सब लोग कॉमन है, किसी भी स्ट्रीम से आए सबके लिए। लेकिन 2 पेपर आप ऑप्शनल, आपकी सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट की है, जरूरी नहीं कि ये हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अगर बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो जरूरी नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हैं उसके अंदर। आप चाहे तो आर्ट्स की सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं, विच इज अलाउड। सो आप सोच समझ के, अगर आपको लगता है सिविल सर्विसेज में जाना है, तो ये 2 पेपर जिनका 500 नंबर का वेटेज होता है, विच इज वेरी क्रिटिकल। तो आपको लगता है कि हम 3 साल वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं पे अगर हम बिल्ड करेंगे आगे तो हमें अच्छा होगा, बजाय नए सब्जेक्ट पढ़ने के। क्योंकि बहुत डेप्थ में सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है और जनरल स्टडीज भी है इसके अंदर। तो आप अपने जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चूज करें, वो कहीं ना कहीं आपकी 11th 12th से भी लिंक होता है।
तो अगर आप सिविल सर्विसेज आपके दिमाग में है तो आप ये सोच के सर कि आपको 11th-12th में क्या पढ़ना है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना है, क्योंकि तभी आप सिविल सर्विसेज में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और इट इज द टफेस्ट और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया। सो मेंस की जो मार्क्स है, अगर ये हम 7 पेपर का देखें तो 1750 मार्क्स का पेपर होता है। देन इसके बाद जो है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, 275 नंबर का इंटरव्यू स्टेज होता है, और 2025 की में से फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उनको उनकी जो है कैडर के हिसाब से आईएएस, आईपीएस और दूसरी सर्विसेज के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देन देयर ट्रेनिंग स्टार्ट्स। नेक्स्ट, अब जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर बेसिस इससे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, असेस द पर्सनालिटी सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज, 270 मार्क्स का होता है। मेंटल अलर्टनेस चेक करते हैं उसके अंदर, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन, लोगों में घुलने मिलने की जो आपकी क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, और इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी। ये सब वो इंटरव्यू के दौरान ये सारी क्वालिटीज देखने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यूज का वेटेज भी 275 होता है, मेंस का 175 मिला के फाइनली 2025 में से मेरिट लिस्ट बनती है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि कंपटीशन कितना है इसके अंदर, यू कैन सी पूरे इंडिया से लगभग 10 से 11 लोग एग्जाम जो है प्रीलिम एग्जाम देते हैं लोग, और फाइनली 800,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। सो यू कैन सी 0.1% से भी ज्यादा जो है इसका सिलेक्शन रेशियो है। 1000 में से एक आदमी जो है सेलेक्ट हो रहा है। सो यू कैन सी हाउ कॉम्पिटिटिव दिस एग्जामिनेशन इज, और ये सारे डाटा 2018 तक के हैं, और इससे आपको आइडिया लग सकता है कि ये एग्जाम कितना कॉम्पिटिटिव होता है। जो 10 से 11 लाख लोग प्रीलिम में बैठते हैं उसमें से करीब जो है मेंस में करीब 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। प्रीलिम्स में से लगभग 5 लाख, आधे करीब लोग जो है प्रीलिम क्रॉस कर पाते हैं। मेंस के लिए 10,000 लोग, एंड देन लगभग डबल कैंडिडेट जो है, जितनी पोजीशंस अवेलेबल है उससे लगभग डबल या ट्रिपल लोग जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, और दिस इज द वे फाइनल सिलेक्शन हैपेंस। नेक्स्ट, अगर आप इसका कट ऑफ मार्क्स देखें तो लगभग 50% के आसपास जो है इवन टॉपर का कट ऑफ रहता है। आप देखें अगर जनरल में 2019 में तो 49% जनरल का जो है कट ऑफ था प्रीलिम्स का, और इवन मेंस में जो है 43% था, इंटरव्यू मिला के जो है 48% के आसपास जनरल का कट ऑफ था। बाकी कैटेगरीज में भी जो है काफी लोअर साइड जा रहा है। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर किसी के 50% भी अगर आ रहे हैं तो ही कुड बिकम और शी कुड बिकम द टॉपर ऑफ इट। तो दिस इज द वे हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज। और ये जो है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आती है इसमें फाइनली, क्योंकि बहुत रिगरस एग्जाम होता है, डेस्क्रिप्ट होता है, तो नॉर्मली इसके कट ऑफ वगैरह काफी लो हो जाते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया हाउ कॉम्पिटिटिव एंड हाउ रिगरस दिस एग्जामिनेशन इज। नेक्स्ट, ये इनका कैरियर प्रोग्रेशन होता है आईएएस का। टिपिकली अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, देन कैबिनेट सेक्रेटरी, रिटायरमेंट तक पहुंचते आप। तो दिस इज द वे ये नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता है। बाकी अलग अलग जगह पे भी काफी जो है स्टेट लेवल पर अगर भेजते हैं तो सेक्रेटरी लेवल तक, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक ये लोग जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर रहते हैं तो वहां पे। नेक्स्ट, आईपीएस के लिए टिपिकली एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ज्वाइन करते हैं, एंड डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीजीपी, एडीजीपी है ना, डीआईजी, इस लेवल तक लोग रिटायर होते हैं नॉर्मली। बीच बीच में जो है एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, ये सब सारे डिजिग्नेशंस इनके चलते हैं। सो दिस इज द कैरियर प्रोग्रेशन फॉर अ टिपिकल आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट, I have I am sharing few prominent civil servant. नरेश चंद्रा हैं जो कि आईएएस थे, और ये इन्होंने राजस्थान कैडर से थे, पद्म विभूषण रहे हुए हैं, और एज ए कैबिनेट डिफेंस और होम सेक्रेटरी रहे हुए हैं। टीएन शेषन बहुत फॉर्म, जिनको काफी लोग जानते हैं, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, और इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हैं। बहुत सारे जो है इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए इंडिया में, एंड ही इज अ वेल नोन पर्सनालिटी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था। मिस्टर एनएन वोरा आईएएस है, ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम रहे हैं, और फर्स्ट सिविलियन गवर्नर ऑफ जेएंडके बाद में भी रहे हुए हैं। किरण बेदी
बहुत फेमस है, इंडिया की पहली लेडी आईपीएस ऑफिसर रही हुई है, और अभी जो है पुडुचेरी की जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि एक तरह से जो है गवर्नर की तरह से होता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है, यूनाइटेड नेशंस मेडल मिला हुआ है इनको, एंड शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन civil services. So this is just for an idea. There are thousands of civil servants who have worked for the country or working in the country in various capacities. Next. So how should be your preparation? सबसे पहले तो आपको जो भी +2 करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए तरीका वो है कि प्रीवियस ईयर, अभी इज टू अर्ली, बट आप जो भी एग्जाम सेलेक्ट करें, कैरियर सेलेक्ट करें अपना, तो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले +2 पे और ग्रेजुएशन के लेवल पे। सो एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे पढ़ते रहें, जनरल स्टडीज में काफी आता है, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग की हैबिट्स अभी से डालें। जिन लोगों को क्योंकि जनरल स्टडीज या जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, ये एकदम से नहीं तैयार होता है, ये धीरे धीरे तैयार होता है। तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, थोड़ा बहुत न्यूज सुने, मैगजीन्स वगैरह पढ़ें, और जो भी पूरी दुनिया में क्या चलता रहता है, करंट अफेयर्स, इनके बारे में अपनी नॉलेज रखें। इंडिया की हिस्ट्री काफी यूज पूछी जाती है, सो जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आप हिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी, बहुत जिसके कहना है कि बहुत चीजों की पढ़ाई ये लोग करवाते हैं, तो आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में आपको देखना पड़ेगा चीजों को। और आप पुराने पेपर्स देख सकते हैं, एनालाइज एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, तो बहुत डेप्थ में स्टडी होती है इसमें, बहुत सुपरफिशियल नहीं पूछा जाता है, और बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल तक का जो है अच्छे तरीके से इसमें पूछा जाता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को, बट 2-3 चीजें जो आप शुरू से कर सकते हैं, आप जनरल नॉलेज और हिस्ट्री वगैरह ये चीजें अभी से पढ़ना कंटिन्यू रखें, सो दैट यू कैन बिल्ड अ गुड जनरल नॉलेज बेस, है ना, बाय द टाइम यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, ये कुछ कॉलेज है, सॉरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो राव काफी फेमस है, इसके अंदर दिल्ली के वजीराम एंड रवि है, तो इनकी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, इनके बहुत सारे कोर्सेज है, कंटेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कॉरेस्पॉन्डेंस, कई जगह इनके ब्रांचेस भी आप देख सकते हैं, तो इनकी डिटेल्स आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। आई हैव जस्ट शॉर्टलिस्टेड फ्यू ऑफ देम। नेक्स्ट, now the second part and the last part of this presentation is about Indian defense services. Next, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, जिनको हम 3 पार्ट में देखते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, जल सेना, थल सेना और नौसेना। तो इन तीनों का जो है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 3 प्रोफेशनली अनइन्फॉर्म्ड यूनिफॉर्म सर्विसेज, और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है इंडिया की आफ्टर चाइना। लीडरशिप फ्लो, प्रेसिडेंट जो है इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं, देन वी हैव प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस सेक्रेटरी इज देयर, देन वी हैव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आजकल जनरल विपिन रावत है, ये नई पोजीशन है, पिछले कुछ 1-2 सालों से क्रिएट हुई है। फिर इसके बाद तीनों जो आर्म फोर्सेज है उनके हेड्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, वो जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जो है रिपोर्ट करते हैं, एंड देन दिस इज द वे लीडरशिप फ्लो गोज। नेक्स्ट, अब इन सब में जाने के लिए जो टॉप 2 एग्जाम होते हैं, एनडीए आफ्टर 12th, तो जो स्टूडेंट अभी 9th-10th में है वो एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं, वो 12th वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन के बाद भी सीडीएस के थ्रू डिफेंस फोर्सेज में जाते हैं। सो दीज आर द 2 ways to get into defense forces. Next, so we'll take up one by one. First, I'm taking up CDS. Next, so conducted by UPSC. जैसा मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया आपको, यूपीएससी कंडक्ट करती है, 2 बार करवाती है साल में, और ये किसके लिए कंडक्ट करवाती है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, जहां पे जो थल सेना के लिए, जो सेना जमीन पे रह के युद्ध करती है, उनके लिए तैयार करते हैं कैंडिडेट्स को। इंडियन नेवल एकेडमी है जो एजीमला में है, वो आपको नौसेना के लिए तैयार करती है, जो पानी पे हमारी सेना है, जल समुद्र में रहती है। उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, वो हमारी वायुसेना है जो आकाश में रह के लड़ती है, उसके लिए है। और इसके अलावा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई है, जो कि बहुत सारे ऑफिशियल स्टाफ होता है, मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसके लिए आर्म्ड फोर्सेज में तैयार करती है। नॉर्मली नवंबर में सीडीएस 1 के लिए पब्लिकेशन आता है, और जुलाई और अगस्त में सीडीएस 2 साल में 2 बार होता है, उनके लिए जो है नोटिस निकलता है। एग्जाम कंडक्ट होता है फरवरी मार्च में जो सीडीएस 1 होता है, और अक्टूबर नवंबर में जो है सीडीएस 2 होता है। 2 स्टेज में एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। नेक्स्ट, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया 19 से 24 साल होता है,
इंडियन मिलिट्री और फोर्स, एयरफोर्स और नेवल के लिए, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैनेजमेंट जो कैडर होता है उसमें 19 से 25 साल होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड काफी देखे जाते हैं इसके एग्जाम के अंदर, और डिग्री जो है किसी भी, अगर आप मिलिट्री एकेडमी में जा रहे हैं और ऑफिसर्स एकेडमी में जा रहे हैं, मतलब थल सेना और जो ऑफिशियल वाली जो एकेडमी है उसके लिए आप किसी भी डिग्री हो सकती है आपकी, उससे आप एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर नेवल एकेडमी में जाना है आपको तो आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो किसी का इंटरेस्ट रहता है कि मुझे नौसेना में जाना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है, आप आर्ट्स लेके नौसेना में नहीं जा सकते। या अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है की डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो स्टूडेंट है 11th-12th में अगर आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं उनके लिए एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के रास्ते बंद हो जाते हैं। यू कैन गो इनटू अर्ली मिलिट्री एकेडमी थल सेना में, या आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। तो ये चीजें जानना जरूरी है कि आपको चीजें कहाँ पे मिस कर सकते हैं। आप दिमाग में बैठे मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है और आपने 11th-12th में आर्ट्स ले लिया तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी बाद में, क्योंकि आप बाद में साइंस नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर आपको एयरफोर्स में या नौसेना में इंटरेस्ट है तो आपके पास जो है 11th-12th में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स के साथ में, बायो भी नहीं, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। सो ये चीज ध्यान रखें आप। लेकिन अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करें 12th में कोई सा भी हो तो आप IMA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी लोगों की चॉइस होती है, किसी को आकाश ज्यादा पसंद होता है, किसी को पानी का एडवेंचर पसंद होता है, तो आप देखें इस तरीके से अपना करियर प्लान करें। नेक्स्ट, उसके बाद जो है एग्जाम का पैटर्न है, जैसे मैंने बताया यूपीएससी करवाती है, रिटन एग्जाम होता है, यूपीएससी देन SSB का सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, ऑफलाइन पेन एंड पेपर एग्जाम होता है, इंग्लिश के 120 क्वेश्चन होते हैं, जीके के 120 और एलिमेंट्री मैथ्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं देखें, इंग्लिश अच्छी रखना है, जनरल नॉलेज पढ़ाई करते रहना है, और एलिमेंट्री मैथ्स इसमें पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, और 340 क्वेश्चन होते हैं IMA, INA और AFA के लिए, एयरफोर्स, नेवल और मिलिट्री एकेडमी के लिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग वाले होते हैं उसमें 240 क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। अगर हम देखें तो कट ऑफ वगैरह कैसा रहता है, आप देखेंगे कि मिलिट्री एकेडमी के लिए करीब फाइनल रिजल्ट जो है ना 43% हो मार्क्स आपके, 340 258, तो 100 सीट है तो आपको लगभग, मैं कह रहा हूँ कि 40 से 50%, मतलब 45-50% मार्क्स है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सो हाउ टफ इज दिस, यू कैन सी। हमें लगता है जैसे बोर्ड में 43% 50 तो हमें बहुत खराब माने जाते हैं, बोर्ड में हमेशा 90% की बात होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये स्कोर बहुत कम है। इवन यू द लास्ट कॉल लास्ट ईयर वाज एट 43%, और दूसरे अटेम्प्ट मतलब CDS सितंबर में भी दिस वाज अराउंड इवन 40%, और नेवल एकेडमी में तो और कम था, एयरफोर्स में थोड़ा सा ज्यादा था 44, और ऑफिसर्स एकेडमी में भी 40%। सो आपको कम से कम 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपके पास फाइनली कॉल आएगा, कट ऑफ मतलब आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा भी जो है इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत टफ होता है इनका, उसके बाद जो है इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट, अभी इस साल का नोटिफिकेशन आ गया है, और ये एग्जाम जो है 17, ये तो लास्ट ईयर का, सॉरी, डेट ऑफ 7 फरवरी को जो है एग्जाम है। नेक्स्ट, एंड द फाइनल पार्ट इज अबाउट NDA। अभी आपको ग्रेजुएशन तक वेट नहीं करना है, या नहीं मुझे तो पहले ही जाना है आर्म फोर्सेज में या डिफेंस फोर्सेज में, तो यू कैन टेक दिस रूट ऑफ NDA, 12th के साथ एग्जाम होता है। नेक्स्ट, वही इसमें 2 पार्ट होते हैं, UPSC स्टेज 1 का रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाती है, और जो इंटरव्यू है वो SSB करवाता है। अगेन ये भी एग्जाम साल में 2 बार होता है, फॉर इंडियन मिलिट्री सर्विस, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इसमें मैनेजमेंट वाला ऑफिसर्स ट्रेनिंग वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद के लोगों के लिए है। सो इसमें सिर्फ 3 ही आपको, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें कुछ एज का क्राइटेरिया है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, और अभी आप देखें इसके अंदर कि आप अगर आर्मी में जाना है आपको तो आप 12th किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी में भी करें, यू कैन गो इनटू आर्मी, थल सेना के अंदर। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स और नेवल विंग में जाना है, आपको वायुसेना में या जल सेना में जाना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12th होना चाहिए। सो अगेन देयर इज ए केस, अगर आपको आर्म फोर्सेज में जाना है, एयरफोर्स में और नेवल में, तो आप 11th-12th में फिजिक्स और मैथ्स लेना ना भूलें।
थल सेना में या बाद में ग्रेजुएशन के बाद उसमें ऑफिसर्स वाली कैटेगरी में जाना है तो आप कोई भी स्ट्रीम लेके चल जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत जानना जरूरी है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस होती है इसमें, और ये सब उसके नेशनलिटी के क्राइटेरिया वगैरह है इसके अंदर। बट मेन जो चीज मैंने आपको बताई कि आप 11th-12th में क्या सब्जेक्ट चूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस विंग में या किस सेना में जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस में। नेक्स्ट, जो इसका पैटर्न होता है रिटन टेस्ट का, वो उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ्स का होता है 300 नंबर का 2.5 घंटे का, और दूसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 600 नंबर का होता है 2.5 घंटे का। सो 900 का टेस्ट होता है, पूरे दिन भर 5 आवर्स की टेस्टिंग होती है, और मार्किंग स्ट्रीम होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 4 नंबर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। काफी हाई नेगेटिव मार्किंग है, -1.33, और जो मैथ्स वाला पार्ट है 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 0.83 उसकी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद जो है स्टेज 2 का जो इंटरव्यू होता है, काफी रिगरस प्रोसेस होता है। उसमें भी कई स्टेजेस होती हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। सो द एंटायर प्रोसेस इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी रिगरस, वेरी डिमांडिंग, और उसकी बहुत सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन जरूरी है। नेक्स्ट, आप अगर पिछले कुछ सालों के कट ऑफ देखें, 18 के दोनों और 19 दो, तो लगभग वही 38-40% के आसपास लास्ट स्टूडेंट को कॉल आता है। तो अगर आपके जो है मार्क्स इस तरह की इस रेंज में है, तो एंड यू कैन एक्सपेक्ट फाइनल सिलेक्शन मेरिट ऑर्डर में, जो है ना, आउट ऑफ रिटन टेस्ट का भी है और जो है ना टोटल मार्क्स का भी है। नेक्स्ट, इस साल की एग्जामिनेशन 18 अप्रैल को हो रहा है, और उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोमिनेंट परसेंटेज है जो एनडीए एकेडमी से निकले हैं। आपके पुणे में ही खड़गवासला में एनडीए एकेडमी, आप लोग सब जो जानते हैं। राकेश शर्मा जो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन से स्पेस में गए थे, वो अशोक चक्रा से अवार्डी भी है, और एयरफोर्स में रहे हुए पायलट रहे हुए हैं वो। प्रोफेसर विपिन रावत जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो खुद जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल वगैरह है, और जो है ये गोरखा राइफल्स इन्होंने थल सेना से है। जनरल वीके सिंह जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी रहे हुए हैं, अभी एमपी है, मिनिस्टर भी रहे, और वो भी थल सेना से रहे हुए हैं, एयरफोर्स से रहे हुए हैं। और आरकेएस भदौरिया है जो अभी करंट एयर चीफ मार्शल है, नौसेना से है। तो दीज आर फ्यू प्रोमिनेंट पीपल दैट आई हैव ट्राइड टू ऐसे बहुत देयर आर सो मेनी गुड ऑफिसर्स दैट हैज सर्व्ड द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटी। नेक्स्ट, अगेन सेम थिंग, आप अगर इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अच्छे से जो है एग्जाम्स की जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह प्रिपरेशन करें, करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहें, और जो भी इन एग्जाम्स के पुराने पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करें, और पूरी प्रोसेस की जितने भी स्टेजेस हैं, हर एक स्टेजेस के लिए आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देगा। अगर 11th-12th के लेवल पे आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो 12th के लेवल पे, और अगर ग्रेजुएशन के लेवल पे देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का रूट भी मैंने आपको बताया, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, ये कुछ जो है इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें एनडीए की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट्स आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर वेरियस कोर्सेज, प्रोग्राम्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स। नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thanks, Manoj. It was really insightful, and I'm sure everyone who is attending would have really gained a lot of information about all these exams. So now we are open to question and answers. You can chat the questions, and we will certainly respond. So please, either you can raise your hand or you can chat in the box. Anyone? Yeah. So, Manoj, one question is coming. How can I prepare for IAS exam from now? Do you want to take that question? नाउ मींस विच क्लास यू आर इन? 10th. ओके, 10th क्लास में है स्टूडेंट। सो Yes. अब सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि मुझे कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहिए आईएएस के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता दिया। आईएएस में जनरल स्टडी होता है, इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल पेपर्स भी लेने होते हैं आपको, और आपको ऐसे राइटिंग और सारी चीजों की बहुत डेप्थ से प्रिपरेशन करनी होती है। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम शुरू करते हैं तो आर्ट्स में आप जो है जो ऑप्शन सेलेक्ट करें वो एक बार आप
यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है आप उसको चेकआउट कर लें। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो आप उसके अंदर जो है आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लें जो आप ऑप्शनल पेपर्स के रूप में आईएएस में सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप साइंस लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको काफी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना तीनों स्ट्रीम के उसमें आई एम सॉरी। तो सबसे पहले तो जो ऑप्शनल पेपर्स है उनके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें कि आप कौन से पेपर आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है 11th-12th के अंदर, और अकॉर्डिंगली फिर ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी से करनी है वो एक तो है कि आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। आप न्यूज़पेपर कम से कम एक न्यूज़पेपर या दो न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश का, या आपकी जो भी लैंग्वेज है लोकल लेवल लैंग्वेज उनका आप रेगुलर पढ़ें। आप करंट अफेयर्स को आप अच्छे तरीके से अपडेट करें। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारे जो है ना इन सब चीजों को आप रेगुलरली पढ़ते रहे। भले आप साइंस ले रहे हैं लेकिन आप जो एनसीईआरटी की बुक्स है इंडियन हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की आप स्टडी करते रहे। आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आप अभी से कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स के जो बहुत सारे जो है ना एडिटोरियल्स हैं उनको आप पढ़ते हैं रेगुलर। रीडिंग हैबिट्स आपको न्यूज़पेपर की बहुत डेवलप करनी पड़ेगी। मैगजीन्स का आपका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, कोई भी मैगजीन, इंडिया टुडे, आउटलुक वगैरह है। इसके अलावा योजना करके गवर्नमेंट की एक वो आती है बुक, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपको बहुत सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आप जितना टाइम आप प्रिपरेशन में देंगे उतना टाइम आपका जाता जाएगा। कई बार कहते हैं ना कि बहुत 21 साल 22 साल में आईएएस बन गए लोग, और कई बार लोग 30 तक बनते हैं। तो बहुत सारे लोग उसके बाद शुरू करते हैं। तो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उस डायरेक्शन में। ये तो क्लियर है, जनरल स्टडीज के 5 पेपर होते हैं, ऐसे का एक पेपर होता है, और उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एटलीस्ट आप जनरल स्टडीज को तो आप अभी से तैयार करना शुरू कर सकते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर लेते हैं वो तो आपको 11th-12th में अच्छा परफॉर्म करना है, ग्रेजुएशन में उनकी अच्छी पढ़ाई करनी है, वो अपने आप साथ साथ तैयार होते रहेंगे। और एक ऐसे राइटिंग है, आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप कंप्यूटर्स पे बहुत सारे एग्जाम देने लगे हैं, ऑनलाइन देने लगे, लेकिन यूपीएससी अभी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आपको राइटिंग हैबिट्स अभी से बना के रखनी पड़ेगी। तो 2-2.5 घंटे तक 3 घंटे तक बैठ के ऐसे लिखना किसी भी टॉपिक पे मजाक की बात नहीं है। हम एग्जाम में हमारे जो 15 मिनट मिलते हैं ऐसे, उसी में हम लोग परेशान हो जाते हैं 2-3 पन्ने के लिखने। बट यूपीएससी के जो ऐसे होते हैं बहुत लंबे और लेंथी ऐसे होते हैं। तो राइटिंग हैबिट्स आप कंटिन्यू रखें अपनी लिखने की। रीडिंग हैबिट्स स्पेशली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी आप रेगुलर रखें। थोड़ा थोड़ा टीवी पे जो कुछ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स आते हैं या न्यूज आते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम इसको जरूर दें। आप ना एंटरटेनमेंट वगैरह जो चीजें जैसे बांटते हैं चीजों को, ऐसे अपनी प्रिपरेशन का टाइम भी आप उसमें डाल के रखें कि रोज मुझे आधा घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, वीक में 1 घंटे या 2 घंटे कोई मैगजीन पढ़नी है, या रोज मुझे 15 मिनट का आधा घंटे का एक न्यूज बुलेटिन देखना है, जिसमें टिपिकली न्यूज को अक्रॉस द ग्लोब बताया जाता है। कोई ये डिबेट वाला वो नहीं देखना है जिसमें किसी एक टॉपिक को लेकर घंटों तक बहस चलती रहती है, जिसमें आपको पूरे आधे घंटे के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जो आजकल बहुत छोटे छोटे स्निपेट्स में आपको न्यूज अपडेट कर देती है। तो आप करंट अफेयर्स अपडेटेड रहे, इंडिया की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पूरा इंडिया की पॉलिटी है उसके बारे में आप पढ़ाई करते रहे। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको जैसे अपनी रूटीन पढ़ाई से मोनोटोनिसिटी लगे, आप इनको पढ़ते रह सकते हैं रेगुलरली। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप पढ़ते रहे, धीरे धीरे बिल्ड होगा आपका। ये है। सो दिस इज द वे यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। Sure. So there's one more question. Divya wants to know 11th से ही कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सो ये किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप दिव्या? आर यू टॉकिंग ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? हाँ, सो अभी मनोज ने यस कवर मैम। किया। ओके, अभी मनोज ने जस्ट कवर किया कि आप 11th और अभी 9th 10th 8th से भी आप कर सकते हैं, जो आप एटलीस्ट जनरल स्टडीज, न्यूज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी जिस लेवल का है आप उससे पढ़ना चालू कर सकते हैं, आपका नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन कैन सर्टेनली स्टार्ट। यस मनोज। अभी 11th-12th के लेवल पे अभी कोचिंग को फॉर्मली लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी कोचिंग जो है सिविल सर्विस वगैरह की, आप यू कैन स्टार्ट इन ग्रेजुएशन ईयर्स। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑल्सो, है ना। बट 11th-12th में आप जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, आप ये जो मैंने बताया 2-3 चीजें, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया की पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के बारे में, जियोग्राफी के बारे में जानकारी, ये चीजें आप साथ में पढ़ते रहे 11th-12th के लेवल पे। एंड एनसीईआरटी बुक्स आर गुड एनफ। आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें,
न्यूज़पेपर पढ़े, एक मैगजीन पढ़े और टीवी पे थोड़ा सा न्यूज और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम रेगुलरली देखते रहे। तो आप वीक में 2-3 घंटे का कंटेंट आप इसमें डाल के रखें, आप धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा ये। लेकिन अभी कोचिंग 11th-12th लेवल पे वैसे नॉर्मल सिविल सर्विसेज के लिए देते भी नहीं है लोग, बट आप जो है ग्रेजुएशन में शुरू कर सकते हैं कोचिंग वगैरह। अभी आप 11th-12th पे फोकस करके रखें और जो भी सब्जेक्ट 11th-12th के उनको अच्छे से पढ़े, प्लस साथ में 2-3 चीजें जो मैंने बताई वो आप रेगुलरली करते रहे। Right. There's one question from Mrunmai. She wants to ask, is it possible to become a commercial pilot after entering Air Force? So do you want to take that? या सी कमर्शियल पायलट बनने के लिए वैसे तो बहुत सारे अलग कोर्सेज भी होते हैं, बट अगर आप आर्म फोर्सेज में जाते हैं एंड यू कैन लीव आर्म फोर्सेज एनी टाइम, और अगर आपको लगता है कमर्शियल पायलट में आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन कम बैक एंड जॉइन एज कमर्शियल पायलट। देयर आर कंपनीज हु वुड लाइक टू एकदम से हाथों हाथ लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग आर्म फोर्सेज में मिलती है एयरफोर्स के अंदर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट आपको लगता है कि इवन सिविल सर्विसेज अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाएंगे वहां पे एयरफोर्स में, तो आपका कभी मन भी नहीं करेगा आने का, जो चैलेंजेस वहां पे हैं। बट अगर आपको लगता है कमर्शियल पायलट ही बनना है तो वो रूट काफी रिग्रेस होता है, उसको लेने के बजाय देयर आर अदर वेज टू गो इनटू बिकम ए कमर्शियल पायलट। तो वो रिलेटिवली इजी रूट होता है, उसमें आप बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज होते हैं, फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बेसिस पे आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। Yeah. So there are a lot of flying clubs in Pune and Mumbai that I know of. तो आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको 11th-12th तो साइंस ही रखना पड़ेगा। बट जितना एयरफोर्स के लिए स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी नहीं है। बट आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं और उसके बाद एक्स नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स के बाद यू कैन गेट इनटू कमर्शियल पायलट जॉब्स। बट आई थिंक a bigger dream is to get into Air Force and serve the nation till you retire. So after that you can certainly come back, because if you fly you would really see a lot of people who have come from Air Force, they have retired from there and now are flying, because यदि आपका बहुत ज्यादा progression वहां नहीं हो पाता तो then you are made to retire after certain age. So उनका भी एक mechanism है how people get out of the services. Obviously you continue to get various benefits from defense services, but आप retire भी हो जाते हैं यदि आप growth नहीं हुई है तो रिटायरमेंट भी होता है, लॉट ऑफ पीपल हैव टू टेक रिटायरमेंट्स। सो आप उसकी बात कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू get out of Air Force when you are still in work and get into commercial pilot. Challenges दोनों में अलग अलग टाइप के challenges हैं, so आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, but I think there is no comparison of serving the nation into Air Force and becoming a commercial pilot, but I'll leave it to your interest, but you can certainly come back to commercial piloting. There's one more question they're asking. Can you help us for IPM preparation, which is taken by various IIMs, and also for its personal interview? So let me take that question, Manoj, and then you can certainly add on. So certainly we help you in terms of our institute. Had some students who were interested in IPM. They started preparing, and later because of switching of some interest in between, they left it. But we do prepare students for IPM, जो 12th के बाद आपको एग्जाम देनी रहती है, और उसी के साथ हम उनके पर्सनल इंटरव्यू के भी प्रेपरेशन आपको करवा देते हैं. So yeah, that's the question. Another is coming for NDA. Manoj, do you want to add something for IPM? I just didn't take. Yeah, I know. As Sushma has already told, she is doing and she can prepare you. और इसके अलावा जो है क्योंकि ये एग्जाम बहुत नया है अभी, बहुत ज्यादा इसका स्ट्रक्चर्ड जो है ना कोर्सेज वगैरह अभी ज्यादा नहीं है, बट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो इसका कंटेंट या प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं. बट आई वुड से अभी भी ये कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेगमेंट अभी ओपन अप हो रहा है, और अभी बहुत फॉर्मल कोर्सेज इसको लेके अभी लॉन्च नहीं हुए हैं. तो बट सडनली जिस तरह के पेपर्स होते हैं, जैसे जिन लोगों ने एनटीएस से दिया होगा, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग वगैरह के पेपर्स दिए होंगे, उनको काफी आइडिया होगा. एंड सडनली सुषमा साइंस सेंटर, इवन आई एम फ्रॉम कोटा एंड आई एम प्लानिंग टू गेट इनटू दिस सेगमेंट, और मैं उसके लिए कंटेंट प्रिपरेशन वर्क कर रहा हूँ. सो इफ यू डिसाइड टू टेक इट ऑन, हम लोग सुषमा साइंस सेंटर और स्कॉलरशिप मिलकर आपकी हेल्प
जरूर कर सकते हैं. इफ नॉट इन दैट स्ट्रक्चर्ड वे अभी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ कंटेंट, प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, और लेटर ऑन जो इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन होगी, पर्सनल इंटरव्यू की, उसकी प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं. Yeah. There's another question on eyesight requirement for NDA. So, do you want to say something, Manoj, on What that? is the question? What are the eyesight requirement for Okay. NDA? Okay. I don't know the exactly, but there is a stringent requirement for eyesight. But you see, I'll have to personally check it what exactly it is, because it's a very technical question. So I don't want to answer straight, but definitely there is a concern for that, because physical standards are thoroughly checked, for NDA and CDS both. So we'll have to check it out. आप personally एक बार मुझे बता दें सुषमा को, और मैं आपको पर्सनली चेक करके इसको रिप्लाई कर दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द technical requirement for eyesight, but it is definitely there. Yeah, so I just want to add on to it because one of my students जिन्होंने engineering अभी finish किया है and she is working in Microsoft was taking examination which is FCAT, which is for Air Force. So like CDS, she was taking that examination. तो उनका कुछ NDA लेवल पर तो आपका ये है जो 12th के बाद रहता है उसका रिक्वायरमेंट कुछ 6/9 है आई थिंक, and which could be corrected, it should be able to be corrected by specs. So 6/9 से खराब नहीं होनी चाहिए आई साइट, एंड 6/6 हो जानी चाहिए यदि आप स्पेक्स लगा लेते हैं. एंड लेजर सर्जरी इज नॉट अलाउड फॉर एनडीए एंट्रेंस. उस लेवल पे आप ये नहीं कि आप 11th में एनडीए 12th में लेना है, इसके लिए आप 11th में लेजर सर्जरी करके 6/6 कर लेते हैं. सो दैट इज नॉट अलाउड. But for graduation level entry, you can undergo laser operation because my student just underwent this laser operation in February, and now she had her examination. She cleared her FCAT, and October या November में उसका कुछ interview and ये सब examinations थे. But सो वैसा है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में लेजर वगैरह से करेक्शन कर सकते हैं, बट एनडीए के लिए आपकी आंखें 6/9 तक होनी चाहिए. सो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू ईट हेल्दी, कीप डूइंग एक्सरसाइज, स्पेंड लेस टाइम ऑन डिजिटल मीडिया इफ इट कैन सेव योर आईज. डोंट टू मच स्ट्रेन योर आईज. So yeah, that's the thing. So yeah, these are the questions that we had. Is there any other question people have? Any other question? Otherwise, we can close to this session. Mrunmay, Divya, Akshada, any other question? Okay. So I don't think there are any more questions for the day. We will wait and will be very happy to have you on our last session of this series, which is on studying abroad. We are planning to invite some external people who have insight into this if they are able to be available on that time. So thanks a lot for joining, and stay safe. Have a great day ahead. Thanks, Manoj. Take care and Thank you goodbye. everyone. Goodbye.